Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine and in good health. Welcome to my channel, and today we are going to end your third chapter, which is why boys fail in college. And once again I would request all of you to be very attentively listen and watch this lecture, because in the middle of this lecture you will be asked some of the questions about your assignment. So I have some of the points which we have discussed in this lesson, and it's time to revise them and to remember them. So in the very first part of your lesson, we discussed about some of the students, some kinds of the students, and there were two kinds: students who try and the students who do not try. जो भी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उनकी दो रीजंस होती हैं. दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. एक तो जो कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाते, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते, who don't try at all. So there are two categories which we discussed. Then the next category was the students who have nervous habits, and we discussed some of the nervous habits. What happens when we sit to study? जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अचानक से हमारे दरमियान में डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज पे. और हमें ये बताया गया कि ऐसी हैबिट्स को सिर्फ हम खुद इरेडिकेट कर सकते हैं अगर हम डिसाइड कर लें. तो जो मेन कॉज होता है ऐसे स्टूडेंट्स के फेलियर का, वो डिस्ट्रैक्शन होता है. या तो उनको नींद आ जाती है, या उनको कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाता है जो वो बाद में भी कर सकते हैं, बट they just want to avoid their academics. Then we discussed that it is not necessary that only a student doesn't want to study, or maybe he tries but he fails, but sometimes there are some physical problems, some health related problems as well. A student may be going through some emotional disease, some psychological disease, or some physical disease. And we also discussed some of the common diseases one might face. So that can be the reason that students is not giving his 100% in the studies. So such problems can be addressed by the teachers, parents and the peers, so that we can help that student and he may not fail due to such physical, emotional and mental problems. They can be depressed about something, they have some sort of emotional disturbance, they may be dealing with some social pressure, some emotional pressure, because it is very young age when you go through many this kind of problems. ऐसे एज में आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. इंसान बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं इस एज में, टीन एज में, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने इमेज को लेके, अपने सेल्फ इमेज को लेके, अपनी सराउंडिंग्स को लेके और अपने पेरेंट्स को लेके भी, और समटाइम्स अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी, अपने घर के हालात को लेके. तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती है और इसमें टीचर्स, पेरेंट्स एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. We also have seen some students in our college and school life who are not serious at all. तो हमने ये भी डिस्कस किया कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेजी ब्लफर हैं, जिनका काम सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, तो उसका क्या इलाज है. तो राइटर ये कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को हमें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए. ओनली टाइम कैन गिव देम अ बेटर लेसन. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई ऑन देम, दे विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल they will go through time and hardships of time. वक्त के साथ साथ खुद ही उनको अंदाजा हो जाता है कि इस तरह से उनका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है. जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, you will not bring them round, they will waste their time in playing, even though they are not serious in sports. आपको फुटबॉल खेलते नजर आएंगे, क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, just to bunk their classes. And the writer also suggests that if they are so much serious about the sports, they should join some sports club who can guide them about their professional life. अगर वो उसको एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो उनको उस डिपार्टमेंट में जाके ट्राई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द मनी एंड टाइम. तो ये भी एक काइंड हमने डिस्कस करनी है और यहाँ पे कर ली है अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसको. इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं इनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम से सीरियस नहीं होते ना तो स्टडीज़ के बारे में,
और ना ही किसी स्पोर्ट्स की फील्ड को लेके. Then there are some students in the college who have no purpose at all. They just come to college just to waste their time, just to eat and do gossips with the friends. घूमना फिरना टाइम पास करना उनका मेन पर्पज होता है. टीचर्स उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं. टीचर्स आर रनिंग अराउंड देम एंड दे आर कॉलिंग देम फॉर क्लास, बट दे डू नॉट लिसन एंड दे जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम. तो जब तक विलिंगनेस नहीं होती है स्टूडेंट के पार्ट पे, टीचर्स भी बच्चों को या स्टूडेंट्स को उठा के क्लास में तो नहीं ला सकते हैं. तो विलिंगनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू देयर एकेडमिक्स. फिर हमने एक और काइंड पढ़ी थी स्टूडेंट्स की, जो बेचारे जो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होता है. दे बिलोंग टू सच फैमिलीज जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होती हैं और उनके घर में सब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसके लिए उनको स्टडीज़ के साथ साथ अर्न भी करना पड़ता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वी कैन नॉट सेल विद आवर वन फुट इन वन बोट एंड द अदर फुट इन द अदर बोट. ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो कश्तियों में सवार हो जाएं. आप या तो स्टडी कर सकते हैं या फिर अर्न कर सकते हैं. तो इससे ना तो सिर्फ उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, बल्कि उनकी वो अर्न भी नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू राइटर, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको अफोर्ड करना. एंड दिस इज़ वेरी अनफेयर फॉर सच स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करते हैं. उनकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होती है. बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप साथ साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस भी कर सकता है. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. So we cannot say that this is altogether wrong thing on the part of students to work along with their studies. अगर वो स्टडीज के साथ छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है. Then there was another kind of students who fail because they have a ambition which is not according to their taste and interest. उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, जबकि उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता. तो माइट भी वो उस प्रोफेशन तक पहुंच तो जाएं, लेकिन हो सकता है वो उतना ज़्यादा एक्सेल ना कर सकें उस फील्ड में, या रास्ते में ही वो थक जाएं और नाकाम हो जाएं. तो ये भी एक काइंड थी कि हमने ये भी डिस्कस किया था दैट हाउ इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट टू हैव इंटरेस्ट इन व्हाट यू डू. यू ऑलवेज डू व्हाट यू लव, राइट? और यू डू व्हाट यू लव. या तो आपको वो काम करना चाहिए जो आपको करना पसंद है, या फिर आप जो भी कर रहे हैं आप उसको पूरे दिल से करें. तो एक ये भी काइंड थी कि मिस्टेकन एम्बिशन किस तरह से आपकी स्टडीज को अफेक्ट करता है और आप किस तरह से उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. सो दिस वाज अ क्विक वेलकम बैक स्टूडेंट्स. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस लेसन एंड आई विल गिव इट अ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletical, sports and literary activity. All of these features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. नो डाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं कॉलेज लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें स्पोर्ट्स आ जाती हैं या लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं. आप कर सकते हैं चीज़ों में परफॉर्म, लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो ही आप इनको इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल टाइम दें. अदरवाइज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. और ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑल द टाइम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में. So there should be a balance between your academics and your extracurricular means apart from your studies. जो activities होती हैं, sports होती हैं, functions में perform करना होता है या कोई भी इस तरह की activity जो पढ़ाई से हटके होती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा time waste नहीं करना चाहिए. All of these features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested. Only those who are interested, really interested, वो तो ये काम करें. लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो इसका बहाना बना के क्लासेस बंक करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं. इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इज ऑफन सपोज. वी शुड ऑल नो, राइटर बोलता है कि हमें इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए दैट आवर मेन पर्पज इज टू स्टडी व्हेन वी कम इन कॉलेज. अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो एडिशनल चीज़ें होती हैं.
इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज, अगर इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, गेम्स में वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट। तो उसको चाहिए कि वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ के एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, फुटबॉलर बन जाए, या जो भी वो बनना चाहता है। But most of them really are not, and if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. अगर कोई इनको इस तरह से काउंसलिंग करे तो हो सकता है कि वो इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से अपनी जो एकेडमिक्स हैं उनको हार्म नहीं करें। I do not think that this sort of thing is as serious as a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from outside and at a long range. लेकिन this kind of problem जो अभी हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स की वजह से मेनली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता एज कम्पेयर टू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। वो जो बाकी रीजंस हमने डिस्कस किए हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। देन इस पैराग्राफ में हम देखेंगे जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे कॉलेज में, ना सिर्फ हमारे कॉलेज में बल्कि बाकी कॉलेजेस में भी, कॉलेज लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और मुझे लगता है बीइंग अ टीचर that this thing is really the most dangerous thing for the students, जो उनकी फेलियर का रीजन बनता है। A few lazy buffers drift into college and usually drift out again. कुछ ऐसे लेजी बफर्स ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेज में आ जाते हैं जो जिनका कोई पर्पस नहीं होता और बस वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। उनको नहीं, उनका कोई गोल, कोई ऐसा एम्बिशन नहीं होता और ना ही फ्यूचर में होगा। It is usually wise to let them retire to the cold world. इनको जालिम दुनिया के इस वक्त पे छोड़ देना चाहिए कि वो वक्त के साथ साथ खुद ही उनको अंदाजा हो जाएगा और only time will teach them the importance of time and they will realize their mistakes. वक्त के साथ साथ उनको अंदाजा होगा कि वो कितनी ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ। Sometimes they learn their lesson and return to do first rate work. Sometimes वो सुधर जाते हैं but the burden of proof is always on them to show that they mean business. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। It's too late to realize their mistakes. So before starting last paragraph and ending this lesson, I have a question for all of you. So write down your question, take your pens and start writing. So how do the sports and literary activities have negative impact on the studies of the students? How do the sports and literary activities have the negative impact on the studies of the students? All right. Okay. How can we teach lazy bluffers to get a reason in their life? How can we teach the lazy bluffers to get a reason for their life and focus on their studies? हम किस तरह से lazy bluffers, वो students जो time pass करते हैं, हम कैसे उनको ये बता सकते हैं? How can we tell them that they should find a purpose in their life? So you have two questions for today until now. The last question I will tell you once I have finished this paragraph. On the whole, the problem that the college team faces calls for about the same diagnostic ability. College dean या principal का काम है कि वो diagnose करे। जैसे कि एक डॉक्टर की स्किल होती है कि वो बीमार की जो शख्स होता है उसको diagnose कर लेता है कि इसको क्या बीमारी है। तो being a teacher, being a head of the college institution, ये बहुत ज़रूरी है कि जो head है वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तजर्बा रखता हो। He is helping the young man अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडीली एंड सी इट होल, कि वो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको एक्चुअली गाइड कर रहा है उनकी लाइफ के लिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चॉक आउट अ होल प्लान फॉर देम एंड टू हेल्प देम आउट। इफ ही कैन सेव बॉयज फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब एंड ही इज सक्सेसफुल। अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो अपना फर्ज बखूबी अदा करे, चाहे वो टीचर है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या कोई सीनियर है। ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें बीइंग इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट। सो द लास्ट क्वेश्चन विच आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस regarding your studies?
being a student, what problem do you face regarding your study? So here we will end this lesson. As you know, chapter number 3 is now complete, and now it's your responsibility to give it a reading and to make your own notes. Now there are some word meanings which I would like to discuss with you. You can find some words and phrases at the end of every chapter, and you must read and learn the meaning of such words. So first word is do not. बाउंड्री, ये एक पूरे सेंटेंस को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. डू नॉट कम्प्लीट देयर एजुकेशन, फेल टू गेट द रिक्वायर्ड डिग्री. बाउंड्री तक ना पहुंचने का मतलब कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. गेट थ्रू मीन्स पास. नेटिव एबिलिटी, नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड होती है. कंसंट्रेट करना, गिव फुल अटेंशन टू द गिवन वर्क. इरेडिकेट, रूट आउट, निकाल के फेंक देना, खत्म कर देना. टेक बाय कॉलर, डील फर्मली, सख्ती से पेश आना अपने साथ. पॉइज एंड फिजेट्स, ये कुछ फ्रेज है, मतलब पॉइज से फिजेट तक आप जो सेंटेंस डील करें उसका मीनिंग ये है. इसी तरह से इस तरह की कुछ आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे. और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो ऑलवेज यू शुड ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी विद यू. आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास वो ज़रूर होनी चाहिए, तो आप वो ज़रूर बाय कर लें. इवन दैट यू हैव योर फोन इन योर हैंड, यू कैन डाउनलोड डिक्शनरी ऐप in your mobiles to find the meanings of the words. Similarly, there are some more words which you have to learn, because in the upcoming test I will give you some word meanings in form of MCQs. So I think it's enough for today. Take care. Allah Hafiz.